students, welcome in social science virtual class. How are you? I hope all of you will be fine. Dear students, keep on revising your syllabus. Today we will continue chapter 4 of geography, that is agriculture. In previous virtual class we have discussed what is agriculture. Agriculture means growing of crops and rearing of animals. अगर हम सिर्फ ये कहें कि growing of crop is a agriculture, it will be a narrow definition of agriculture. Actually, agriculture means growing of crops and rearing of animals. जैसे हम crops को grow करते हैं land की help से, इसी तरह से ही हम animals को rear करते हैं land की help से. So both are the part of agriculture. Agriculture also includes sericulture, rearing of silkworms to make the silk, pisciculture, breeding of fish is special constructing tank, horticulture, growing of fruits, vegetables, flowers are known as horticulture, and viticulture, growing of grapes, cultivation of grapes also come under agriculture. So we also discuss types of agriculture. Agriculture done in two ways. Subsistence agriculture, when crops are grown to meet the family needs, to meet the requirement of population, it is known as subsistence agriculture. Subsistence agriculture also has two types: intensive subsistence agriculture, when we use more labor on same piece of land to grow more, it is known as intensive agriculture. In our country, population is small. Our country is second largest populated country in the world. So in our country we do the which type of farming? Intensive agriculture. Second is the commercial agriculture, when crops are grown to sell in the market, it is known as commercial agriculture. So tea, coffee, jute, they are grown for sale in the market. So today we are going to discuss main crops. Student, crops are grown to meet the requirement of the population, and also they provide raw material to which sector? Agro-based industries. Major crops are wheat, rice, maize, millets are our main crops. Jute and cotton are our fiber crops. And important beverage crops are tea and coffee. Food crops कौन सी हैं students? Wheat, rice, maize, millets are our food crop. Jute, cotton are जिससे हम thread बनाते हैं, they are our fiber crops. And important वो क्रॉप्स जो खाने के काम नहीं आती बल्कि जिन्हें ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे टी, कॉफी, दे आर नोन एज beverage crops. Students, now rice is grown in which area? Which type of geographical conditions are required for growing of rice? So rice is the main food crop of the world. It is the staple diet of tropical and subtropical regions. जहाँ ज़्यादा गर्मी है, tropical regions हम उन्हें कहते हैं which are near to the equator. These area are known as tropical. Tropical and subtropical area, it is the main type. तो राइस के लिए कैसे टेम्परेचर है? राइस रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, और इट ग्रोस वेल इन एलुवियल क्ले सॉइल. राइस के लिए स्टूडेंट हमें कैसी सोइल चाहिए? विच हैज द कैपेसिटी टू रिटेन द वाटर. सो दीज आर ज्योग्राफिकल कंडीशन. ज्योग्राफिकल कंडीशन में स्टूडेंट हमें डिस्कस करते हैं रेनफॉल, सोइल एंड टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एलुवियल क्ले सोइल इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस. China is the student leading producer of rice, and it is followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt.
or in a favorable climatic conditions. Our country come in tropical country. So in our country, Bangladesh, 2 or 3 crops are also grown in a year. Which crop? Rice. अभी हमने डिस्कस किया कि राइस के लिए इस तरह की जोग्राफिकल कंडीशन की जरूरत है, कैसी सोयल चाहिए, रेनफॉल, टेम्परेचर, और ये किन कंट्रीज में ग्रो होती है. नेक्स्ट क्रॉप विच आर वी गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अ व्हीट. व्हीट रिक्वायर्स moderate temperature and rainfall during the growing season and bright sunshine. Wheat is also known as rabi crop. जिन क्रॉप्स को हम विंटर में ग्रो करते हैं, ब्लैंकेट वाले सीजन में ग्रो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं राबी क्रॉप. इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. आपने देखा भी होगा कि जब हम बैसाखी मनाते हैं, जब हमारी वीट तैयार हो जाती है टुकट, तो हम इसलिए सेलिब्रेशन भी करते हैं बैसाखी का. नाउ आवर क्रॉप्स आर रेडी टू कट, व्हेन वी सेल इट, इनकम विल कम टू आवर होम. सो सेलिब्रेशन इज डन. सो wheat is extensively grown in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter season. Now next crop is millets. Student, millet is also known as coarse grain. राइस और व्हीट तो फाइन क्वालिटी का ग्रेन है, जो मिलेट है ये कोर्स ग्रेन, थोड़ा उससे इंफीरियर होता है. सो it is also known as coarse grain, or it grows in which type? Less fertile and sandy soil it needs. It is a hardy crop which needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया. हमने कहा ना कि ये कोर्स ग्रेन है, लेस फर्टाइल सोइल वगैरह, तो ये राजस्थान जैसा हमारा एरिया, डेजर्ट एरिया, यहाँ जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, सोइल कैसी है, सैंडी है. इन दिस एरियाज ग्रोन. अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइल. नाउ नेक्स्ट क्रॉप विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज मेज, जिसे हम मक्का भी कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं, स्वीट कॉर्न. सो मेज रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर एंड rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained fertile soils. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. स्टूडेंट, जो हमारे कंट्री में जो कॉर्न का कलर है, मेज का कलर है, दैट इज अ येलो. बट इन डिफरेंट कंट्री कॉर्न के डिफरेंट कलर भी होते हैं, डिफरेंट येलो, रेड, इस तरह के कलर भी इसके होते हैं. Maize is also भी बताया भी कॉर्न. वेरियस कलरफुल वैरायटीज ऑफ मेज आर फाउंड इन अक्रॉस दी वर्ल्ड. तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉप्स को कि ये कहाँ कहाँ ग्रो होती हैं और इसके लिए किस तरह की जोग्राफिकल कंडीशंस की हमें जरूरत होती है. नेक्स्ट क्रॉप विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉटन. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost-free days and bright sunshine. For its growth season, it grows best on black and alluvial soil. Black soil को इसलिए black cotton soil भी कहते हैं because it is best soil for growing the cotton. Student, it is grows in China, USA, India, Pakistan, Brazil, Egypt are the leading producer of cotton. It is the one of the main raw material for the cotton textile industry. Student, now we are discussing the fiber crop. जैसे हमने कॉटन को डिस्कस किया, अब जूट भी क्या है, फाइबर क्रॉप है. जूट was also known as golden fiber. It grows well on alluvial soil and high temperature, heavy rainfall and humid climate needed for its growth. This crop is grown in tropical areas. India and Bangladesh are the leading producer of jute. क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, which is good for growing of jute. Now we are going to discuss weavers crop. Weavers crop क्या होते हैं स्टूडेंट, जिन्हें हम
beverage crop. They are used for drinking, not for eating. Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are suitable for growth of this crop. क्योंकि वाटर का फ्लो इन्हें ज्यादा अगर वाटर सोइल में रहता है तो इनकी जो रूट्स है वो रोटन हो जाती है. So that is why hill slopes are suitable for growth of coffee. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. So next our beverage crop is tea. Tea is a beverage crop grown as a plantation. Plantation crops क्या होती है हमने पहले भी डिस्कस किया था जब कॉमर्शियल क्रॉप्स डिस्कस की थी. इन कॉमर्शियल क्रॉप में डिस्कस commercial grain farming, mixed farming and plantation. When single crop is grown on large area is known as plantation crop. Like tea, coffee, jute, sugarcane are examples of plantation crops. So tea is a beverage crop grown on plantation. This require cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of tender leaves. For the cultivation of tea, we require large number of laborers. Why we require large number? To pluck the leaves. क्योंकि leaves को हम मशीन से कट नहीं करते बट लीव को प्लग किया जाता है. देन वहीं पर ही प्लांट भी लगा होता है, उन्हें ड्राई किया जाएगा. अगर उसका फैक्ट्री जो प्लांट है वो भी साफ होता है क्योंकि अगर इसे दूर होगा जहाँ पे हमारा प्लांट है जहाँ टी बनाई जाती है तो इसकी फ्रेग्रेंस कम हो जाएगी. सो इट नीड्स वेल ड्रेन, लोमी सॉइल, जेंटल स्लोप. लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स. कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन दी वर्ल्ड. अभी हमने डिस्कस की मेन फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स और beverage crop, टी एंड कॉफी. स्टूडेंट, व्हाट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Because we know our population is increasing day by day, so we need more food crops, fiber crops, उनकी प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए. तो what is necessary? Agriculture development is important to meet the needs of increasing population. So how agriculture development take place? Growing more crops, more crop area, यूजिंग HY सीड्स, बढ़िया क्वालिटी के सीड्स यूज करना, फर्टिलाइजर यूज करना, मशीन्स यूज करना ताकि कम टाइम लगे काम को करने में और हम ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर पाए. इट इज नोन एज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. स्टूडेंट, अल्टीमेट गोल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सबको फूड मिलेगा, वी विल बी एबल टू गिव फूड सिक्योरिटी टू ऑल दी पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड दी वर्ल्ड. स्टूडेंट, डिफरेंट प्लेसेस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन अ डिफरेंट वे. सब जगह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है. सम एरियाज में डिस्कस की सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. In some area nomadic herding is done and also shifting cultivation is also done. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं how farming is done in developed countries and developing country. और इसके लिए हम केस स्टडी कर रहे हैं. एक केस हम इंडिया का ले रहे हैं और दूसरा केस USA का. केस स्टडी का मतलब एक्चुअल फैक्ट को लेके हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया. India is a developing country and USA is a developed country. So we take the case of Munna Lal. Munna Lal living in Adilabad in Ghazipur district in Uttar Pradesh. He has a small piece of land about 1.5 hectare. His house is near the field. उसका घर फील्ड में नहीं है, फार्म में नहीं है. His house is near the field in a village.
उसके पास 1.5 हेक्टेयर लैंड है और उसके लिए उसने बढ़िया क्वालिटी के सीड्स खरीदे हैं। मोस्टली वो 2 क्रॉप्स को ईयर में ग्रो करता है, दे आर व्हीट एंड राइस। फार्मर टेक द एडवाइस, कौन है फार्मर? मुन्ना। टेक द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, एल्डर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिगार्डिंग दी फार्मिंग प्रैक्टिसेस। कौन सी क्रॉप लगाएं, कैसा फर्टिलाइजर डालें, इस तरह की वो अपने फ्रेंड्स से, एल्डर्स से और गवर्नमेंट ऑफिशियल से डिस्कस करता है मुन्ना। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड। उसके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है पर वो रेंट पे ले लेता है क्योंकि उससे सोइंग हार्वेस्टिंग कम टाइम में हो पाएगी और वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। Then there is a tubewell in a nearby field which he takes on rent to irrigate the field. उसके पास अपना ट्यूबवेल भी नहीं है, फार्मिंग वो रेन पर डिपेंड तो नहीं है। When he needs water for irrigation, he takes the tubewell on rent to irrigate the field. Munna Lal has 2 buffaloes and a few hens. क्योंकि पूरा टाइम तो एग्रीकल्चर में काम नहीं होता, क्योंकि जब सोइंग कर दी तो उसके पास सुपरविजन और वाटरिंग का काम होता है और उससे रेगुलर इनकम भी नहीं होती फार्मिंग से। सो व्हाट इज ही सेल्स मिल्क इन, जो उसके पास बफेलोस है उसका मिल्क वो कोऑपरेटिव में सेल करता है, इट गिव्स रेगुलर इनकम। ही हैज हेंस, सो ही इज आल्सो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हिच गिव्स एडवाइस अबाउट द फॉडर ऑफ द एनिमल्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हेल्प इन द फार्मिंग। समटाइम्स ही नीड्स द लोन, पैसे की जरूरत होती है, he takes from cooperative or the bank। और जब उसकी फसल तैयार हो जाती है मुन्ना लाल की, he sells in मंडी। In India most of the farmer have not sufficient storage capacity, so they are forced to sell their produce in the market. Sometimes conditions are not suitable, even then they have to sell their crops in the market. So in recent year government has taken some step to develop storage facility की गवर्नमेंट परचेज करके अपने पास रख ले और उन्हें बाद में सेल करे। पर मोस्टली फार्मर जो इंडिया में हैं, जब उनकी हार्वेस्ट करते हैं अपनी क्रॉप्स को, जब फसल तैयार होती है तो उसे कटिंग करके मार्केट में बेच देते हैं। इसका इंतजार नहीं करते कि जब प्राइस बढ़ जाएंगे तब हम उसको सेल करेंगे, उन्हें बेचकर पैसा चाहिए और उन्हें सीड्स वगैरह खरीदने हैं, इसलिए वो साथ के साथ ही जैसे फसल तैयार हुई उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया मुन्ना लाल का केस। इन इंडिया, अब यूएसए में कैसी फार्म होती है? एवरेज साइज ऑफ फार्म इन यूएसए इज वेरी लार्ज। हमारे यहाँ अबाउट एवरेज फार्म 1.5 हेक्टेयर है, वहाँ पे अबाउट 250 हेक्टेयर। और विच क्रॉप्स आर ग्रोन देयर? देयर सम आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन आर ग्रोन। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस जो कॉल अ फार्मर इन मिड वेस्ट यूएसए हैविंग 3 हेक्टेयर्स ऑफ। हमारे यहाँ साइज कितना कम है, वहाँ पे 300 हेक्टेयर्स लैंड है उसके। ही ग्रोस कॉर्न इन हिज फील्ड अबाउट मेकिंग श्योर दैट soil and water resources meet the needs of this crop. Adequate measures are taken to control the pest and can damage the crop. Adequate measure की उसकी फसल को एनिमल्स ना खा लें, पेस्ट अटैक ना कर दे, तो उसका भी उसने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ। From time to time he sent his soil sample to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not। हमारे यहाँ फार्मर्स अपने फ्रेंड्स से उनसे सलाह करके सोइल में खाद वगैरह डालते हैं, पर यूएसए में फार्मर्स जैसे हमने कहा जो हो रहे वो अपना सोइल का सैंपल सोइल टेस्टिंग लैब में भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट्स आएंगे फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे। दिस रिजल्ट हेल्प जोई टू वांट टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। His computer is linked to the satellite which gives him the precise picture of his field। हमारे यहाँ खुद ही सुपरविजन करते हैं, पर वहाँ उनकी फील्ड इतने बड़ी हैं स्टूडेंट्स कि उन्होंने अपने कंप्यूटर को सैटेलाइट से कनेक्ट किया हुआ है, लिंक किया हुआ है कि वो अपने फील्ड्स को अच्छे से देख पाए। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर
एंड पेस्टिसाइड वेयर दे आर रिक्वायर्ड, कि कहाँ पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली सैटेलाइट की हेल्प से वो उसको वहाँ यूज करते हैं। ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड्स ड्रिल, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। उसके पास सारी मशीन्स हैं जो उसे हार्वेस्ट करने के लिए, सोइल के लिए जरूरत है, पर इंडिया में सबके पास नहीं है, कुछ ही फार्मर के पास है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स नॉट हैविंग ट्यूबर्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, these things which they needed for farming. The farmer in USA work like a businessman, not like a farmer. वो अपनी हार्वेस्ट को ऑटोमेटिकली स्टोर कर देते हैं, जब प्राइस उन्हें सुटेबल मिलती है तभी वो उसको सेल करते हैं, और हमारे यहाँ साथ के साथ सेल कर देते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया हाउ फार्मिंग इज डन इन इंडिया एंड यूएसए। इन आवर कंट्री साइज ऑफ फार्म इज स्मॉल, इन यूएसए इट इज वेरी large. In our country, farmer discuss with his friends, elders, which crop grow, which fertilizer is required to the soil. But in USA, they send the soil to soil testing lab. According to the result, they use fertilizer, pesticides. हमारे यहाँ जो कंप्यूटर से, सैटेलाइट से लिंक नहीं है, खुद ही सुपरविजन करते हैं। वहाँ फील्ड्स इतने बड़े हैं कि वो कंप्यूटर से, वो सैटेलाइट से लिंक किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसका सुपरविजन करते हैं, हेल्प करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज एग्रीकल्चर, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एंड रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। इट इंक्लूड्स horticulture, pisciculture, sericulture. Agriculture has two types, subsistence agriculture and commercial agriculture. और इसके साथ हमने डिस्कस किया फार्मिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड इन डेवलपिंग कंट्री। जैसे हमने मुन्ना लाल का केस डिस्कस किया इन डेवलपिंग कंट्री, आर कंट्री इंडिया, और यूएसए का जो वॉरेन का केस डिस्कस किया हमने, ही बिलोंग्स टू, लिव्स इन यूएसए। Size of field is very large, having all the machines which he used in farming. वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ कम है, ये डिस्कस किया। So students, read the lesson, do the worksheet in your notebook, keep on revising your lesson. So students, stay at